and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 3, Excel 2016, and here in this chapter we are going to learn about advanced features. So let's move on to the introduction. Sorting and filtering are essential tools in Microsoft Excel. ये दोनों बहुत ही important और essential tools हैं Microsoft Excel के that help you organize and manipulate data in a spreadsheet, जो आपको help करते हैं data को अच्छे से manipulate करने में spreadsheet में. Let's move on to learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know इस chapter को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या चीजें सीख जाएंगे. They will understand the necessity of charts in Excel. एक्सेल में जो चार्ट की जरूरत है वो समझ जाएंगे. दे विल आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, चार्ट के जो भी कंपोनेंट्स उसके बारे में समझ जाएंगे. दे विल लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, अलग अलग तरीके के चार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में ये अच्छे से समझ जाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन व्हिच इज बीइंग हेल्ड बिटवीन मीरा एंड हीना. So Meera says, "Hey Hina, I have been working on this spreadsheet for our class project." अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए मैं इस वर्कशीट पे काम कर रही हूँ एंड इट्स गेटिंग प्रीटी बिग, और ये काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है. आई नीड टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली. मैं जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पाना चाहता हूँ. डू यू हैव एनी टिप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन एक्सेल? क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं जिससे तुम डेटा को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक्सेल में? ना हीना सेज, Absolutely, Meera. Excel has some great tools for that. इसके लिए Excel के पास बहुत ही अच्छे tools हैं. You can start by sorting and filtering your data. आप जो है sort और filter करके अपने data को इस काम को कर सकते हैं. Now Meera says, sorting, filtering. How does that work? ये कैसे काम करता है? Now Meera says, well, sorting helps you arrange your data in a specific order. Sorting आपको help करता है डेटा को बहुत ही अच्छे से specific order में arrange करने में. Now Meera is saying that sounds helpful. What about filtering? ये तो बहुत ही अच्छा है. तो तुम बता दो filtering के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? Now Hina is saying filtering is like creating a temporary view of your data. Filtering क्या है? ये एक तरीका है जिससे आप एक temporary view create कर सकते हो अपने data का. Now Meera is saying that's great. How do I do it? मैं इसे कैसे करूं? Hina is saying let us learn about sorting and filtering data in this chapter to make your concept more clear. तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है sorting and filtering, and इसके थ्रू हम अपने काम को और आसान बना लेंगे. Now Meera is saying thanks Hina. So let's start the chapter. So what you have to do, you have to imagine we have a large list of names of students and their test scores in an Excel spreadsheet, and we want to make sense of this data quickly and effectively. So हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट है नामों की, किसके? बच्चों के, और उनके जो टेस्ट स्कोर हैं वो सब कुछ हमारे पास है एक्सेल स्प्रेडशीट में. और हम क्या करना चाहते हैं? हम जो है इस डेटा को क्विकली और इफेक्टिवली जो है सेंसिबल बनाना चाहते हैं. व्हाट वुड वी डू? हमें क्या करना होगा टू मेक द टास्क इजियर, इस काम को आसान बनाने के लिए. सो एमएस एक्सेल क्या करता है? प्रोवाइड करता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टेक्निक, जो हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज और व्यू करने में डेटा को और भी ज्यादा आसानी से. So let's move on to sorting data. So sorting in Excel refers to arranging the data in a specific order. Sorting का मतलब क्या है? Sorting की बात अगर हम Excel में कहें तो हम कह सकते हैं कि डेटा को बहुत ही अच्छे से अरेंज करना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना based on the values in one or more columns. जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनके बेसिस पे एक या उससे ज्यादा कॉलम्स में. So sorting is useful when we want to arrange data alphabetically or numerically. We find the highest or lowest values or create a specific order for analysis. तो sorting क्या है? ये काफी ज्यादा यूजफुल है जब हमें डेटा को अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली, मीन्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग. तो हमें क्या करना होता है? हम जो डेटा को यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट या लोएस्ट से हाईएस्ट भी चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग जो है ऑर्डर्स को,
and basic sorting is applied when sorting is to be done do only one column. So basic sorting क्या होता है, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें sorting सिर्फ एक ही कॉलम के लिए करनी होती है. While advanced sorting is used for multi-level sorting. लेकिन ये जो advanced sorting है इसे हम multi-level sorting के लिए यूज करते हैं, which involves 2 or more columns, जिसमें आपको 2 या उससे ज्यादा columns मिलेंगे. So in other words, sorting is the process of arranging data in a meaningful order. So अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि sorting क्या है, एक तरीका है जिससे हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, so that we may analyze it more effectively, ताकि हम उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें. For example, we might want to order salary data by calendar month to create a graph. तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एक यहाँ पे सैलरी डेटा बना रहे हैं कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम ग्राफ को यूज कर रहे हैं. वी कैन सॉर्ट टेक्स्ट डेटा अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिक डेटा इन न्यूमेरिकल ऑर्डर. अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट डेटा है उसे हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं, जो न्यूमेरिक डेटा है उसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं. टू मेक डेटा एनालिसिस मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग, ताकि हम जो भी हमारा डेटा एनालिसिस उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके, एंगेजिंग बना सके. We can sort our Excel data on one column or multiple columns. हम अपना जो भी Excel का डेटा उसको एक कॉलम में या फिर मल्टीपल कॉलम्स में जो है हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं, एंड हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो चलिए मूव ऑन करते हैं. सॉर्टिंग ऑन वन कॉलम, कैसे हम वन कॉलम पे सॉर्ट कर सकते हैं. सो अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है वन कॉलम में तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है किसी भी सेल पे इन द कॉलम वी वांट टू सॉर्ट. सो जिस भी कॉलम में हमें सॉर्ट करना है उसमें जो हमें किसी भी सेल पे क्लिक करना है. नाउ टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ऑन द डेटा टैब पे, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सॉर्ट इन फिल्टर ग्रुप पे, और वहां जाके हमें A to Z एंड Z to A फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है चूज करना है. सो अगर हमें जो है डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम A to Z को चूज करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो Z to A को चूज करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन है आपके सामने, ये है सेलेक्टिंग अ सेल एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट. नाउ सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, कैसे हम अलग अलग कॉलम्स पे सॉर्ट कर सकते हैं. सो अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं डेटा को मल्टीपल कॉलम्स पे तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. पहले हमें जाना है डेटा टैब में जो कि हमें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा, और वहां जाके सॉर्ट बटन पे क्लिक करना है. सो जैसे हम क्लिक करेंगे क्या होगा, जो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. सो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉर्ट हमने किया. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द लास्ट नेम फॉर द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब जो लास्ट नेम है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने आ रही है. अब हमें क्लिक करना है ऐड लेबल्स पे. सो ऐड लेबल्स पे हम जा रहे हैं, वहां पे हमने जाके क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. नाउ अब यहाँ जाके हमें सेलेक्ट करना है सेल्स ऑप्शन को. कहाँ पे मिलेगा ये, देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट. यहाँ पे आपको ये जो देन बाय है यहाँ पे से आपको सेल्स ऑप्शन को चूज करना है. नाउ अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है ओके पे, एंड रिजल्ट क्या होगा, जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जो है सॉर्ट कर लिया गया है उनके लास्ट नेम के साथ. सो सॉर्टेड बाय लास्ट नेम फर्स्ट एंड सेल्स सेकंड. सो सबसे पहले जो है लास्ट नेम को जो रखा गया, फिर सेल्स को रखा गया है. सो ऐसे हमारा डेटा यहाँ पे सॉर्ट हो गया. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा. सो फिल्टर्स कैन बी यूज्ड टू नैरो डाउन द डेटा इन द वर्कशीट. फिल्टर्स को हम यूज करते हैं किस लिए, डेटा को नैरो डाउन करने के लिए हमारी वर्कशीट में, एंड हाइड पार्ट्स ऑफ इट फ्रॉम व्यू विच आर नॉट नेसेसरी, और चीजों को हाइड कर सकते हैं यहाँ से उन चीजों को जो कि जरूरी नहीं है. Now filter the Excel data if we want to display only records. हमें क्या करना है, एक्सेल के डेटा को फिल्टर करना अगर हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं that meet the certain criteria, जो कि उस certain criteria से meet कर रहे हैं. Now click any single cell inside a data set.
हमें जो क्लिक करना है किसी भी एक सेल में जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर है। अब हमें जो है डेटा टैब पे जाना है जो कि हमें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा और यहाँ पे जाके हमें फिल्टर ऑप्शन को चूज करना है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे सामने फिल्टर ऑप्शन। नाउ एरोज इन फ्रंट ऑफ द कॉलम हेडर विल अपीयर। अब जितने भी हमारे कॉलम हेडर हैं आप देख सकते हो इन सब के सामने एरो आ गए हैं। सो ये क्यों आए हैं? फिल्टरिंग के लिए आए हैं। नाउ अब हमें क्या करना है? क्लिक करना है एरो पे नेक्स्ट टू कंट्री। कंट्री के पास जो एरो है इस वाले पे क्लिक करना है टू सेलेक्ट द कंट्री हुज वैल्यू वी वांट टू विजिट। उस कंट्री को चूज करने के लिए जिसके वैल्यू को हम देखना चाहते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल पे ताकि हम क्लियर कर पाए जो चेक बॉक्स है एंड क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू यूएसए। सो यूएसए के पास जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करें तो यूएसए से रिलेटेड जो भी डेटा है आप देख सकते हैं, इतनी सारी डेटा है यूएसए से रिलेटेड, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। नाउ अब हमें क्लिक करना है ओके पे एंड एक्सेल जो हमें जो भी सेल्स है हुई है यूएसए में उसका जो भी रिजल्ट है वो हमें शो करने लगेगा। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें क्लिक करना है एरो पे जो कि क्वार्टर के एकदम पास है। नाउ यहाँ जाके सिलेक्ट ऑल करना है और क्लियर कर देना है जो भी सिलेक्टेड चेक बॉक्स को हमने चूज किया था एंड क्लिक करना है चेक बॉक्स पे जो कि QTR4 के पास है। एंड ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं QTR4 के पास जो चेक बॉक्स उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो क्या रिजल्ट आएगा? एक्सेल जो डिस्प्ले करेगा ओनली द सेल्स इन द यूएसए इन Q3। सो Q3 में यूएसए में जो भी सेल्स हुई थी उनके रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट टू रिमूव द फिल्टर। अब ये सब काम हमने कर लिया, अब हमें फिल्टर को हटाना है वहां से। सो हमें कहाँ जाना है? डेटा टैब में जाना है, फिर हमें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाना है और फिर हमें जाके वहां पे क्लिक करना है क्लियर पे। टू रिमूव द फिल्टर एंड द एरोज क्लिक फिल्टर। अगर हमें फिल्टर को रिमूव करना है तो हमें क्या करना है? क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन पे। So this was how we can do filtering. Now let's move on to conditional formatting. So conditional formatting क्या है? ये एक फीचर है in some of the spreadsheet applications. कुछ spreadsheet applications में that allows us to apply specific formatting, जो हमें help करता है specific formatting को लगाने में। कहाँ पे? cells में that meet certain criteria, जो कि certain criteria को fulfill कर रहे हैं। It is most often used as color based formatting. इसे जो है color based formatting भी कहा जाता है to highlight, emphasize और differentiate data and the information stored in a spreadsheet. So जो कि क्या करते हैं? highlight करते हैं, emphasize करते हैं, differentiate करते हैं डेटा को या फिर information को जो भी spreadsheet में store है। Now अब हमें क्या करना है? We have to highlight सेल्स रूल्स। सेल के जो भी रूल्स हैं उसे हाईलाइट करना है। सो टू हाईलाइट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन अ वैल्यू वी कैन। अगर हमें जो है हाईलाइट करने हैं उन सेल्स को जिनकी वैल्यू जो ग्रेटर देन है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा रेंज। A1 से A10 तक का जो भी डेटा रेंज है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ इन द होम टैब अंडर द स्टाइल्स ग्रुप। अब हमें होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के नीचे जाना है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वहां पे जाके हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग इन एक्सेल। एक्सेल में अलग अलग तरीके की सॉर्टिंग कौन कौन से हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नीड टू फिल्टर डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने की क्या जरूरत है। सो यहाँ पे अब हम स्टाइल्स ग्रुप में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को हमने चूज कर लिया। Now let's click on highlight cells rules greater than। अब हमने इस ऑप्शन को चूज किया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे हमें एंटर करनी है वैल्यू जो कि 80 है और सेलेक्ट करना है एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग स्टाइल। जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमें वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक करना है। रिजल्ट क्या है? एक्सेल हाईलाइट्स ऑल द सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 80 इन वैल्यू। एक्सेल क्या करोगे? उन सारे सेल्स को जो है हाईलाइट कर देगा जिनकी वैल्यू 80 से ज्यादा है। नेक्स्ट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेल A1 टू 81।
A1 की वैल्यू को हम 81 चेंज कर सकते हैं। नाउ रिजल्ट क्या है, एक्सेल विल चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेल A1 ऑटोमेटिकली। एक्सेल जो है, जो हमारा जो फॉर्मेट है A1 का, उसको तुरंत ही चेंज कर देगा। नाउ देयर इज अ नोट फॉर यू, वी कैन ऑल्सो यूज दिस कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है यहाँ पे जो कि हम स्टेप 3 में देख पा रहे हैं, टू हाईलाइट सेल्स दैट आर लेस देन आवर वैल्यू। उन सेल्स को हाईलाइट करेंगे जिनकी वैल्यू कम है, बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में है, इक्वल टू अ वैल्यू, वैल्यू के इक्वल है, सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट्स, टुडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एक्सेट्रा। सो ये जो सेल्स हैं जो बताते हैं ये स्पेसिफिक टेक्स्ट को, डेट्स को, डुप्लीकेट्स और यूनिक वैल्यूज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्लियर रूल्स। सो टू क्लियर अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल, अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल है उसे क्लियर करना है, सो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है सेल्स को सेलेक्ट करना है जो कि डेटा रेंज A1 से A10 के बीच में है। नाउ अब हमें होम टैब पे जाना है जो कि हमें स्टाइल्स ग्रुप में मिलेगा और क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को। अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। सो क्लियर रूल्स पे जाना है जो भी सेलेक्टेड सेल है उसमें से। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन हमने यहाँ पे चूज कर रखा है। सो ऐसा करते ही क्या होगा, जो भी रूल्स हमने लगाए थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ टॉप बॉटम रूल्स, सो टू हाईलाइट सेल्स दैट आर अबव एवरेज। अब ऐसे सेल्स जिनका एवरेज है, अबव है, उनको हाईलाइट करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। सो स्टेप 1 कहते हैं सेलेक्ट द डेटा रेंज A1 से A10। सो A1 से A10 तक का जो भी डेटा रेंज है उसे पहले हमें सेलेक्ट करना है। अब हमें जाना है होम टैब पे स्टाइल्स ग्रुप में और वहां जाके हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज करना है। Now let's move on to let's summarize. So here the first question is, what do you mean by sorting the data in Excel? Excel में डेटा को सॉर्ट करना क्या है? And the second one is, what do you mean by filtering the data in Excel? Filtering क्या है Excel में? So these two questions you have to answer yourself. Now, so in the second point what we did, second point में हम home tab पे गए, फिर styles group में गए और वहां से हमने conditional formatting को चूज किया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है टॉप बटन रूल्स पे एंड यहाँ पे जाके अबव एवरेज ऑप्शन को चूज करना है। सो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे चूज किया गया है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब जो भी हमें फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द फॉर्मेटिंग स्टाइल वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। Now what will be the result? Result will be that Excel will calculate the average. Excel जो average को calculate कर लेगा इस नंबर का and format the cells that are above this average accordingly. So वो जितने भी cells हैं जो इस average से क्या है ऊपर हैं उन सबको अपने आप ही format कर लेगा। Now यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और example दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें data range को select करना है A2 से लेके D7 तक। Now after selecting what we have to do, after selecting this we have to go to home tab under the styles group। home tab पे जाना है, styles group में आपको मिलेगा ऑप्शन क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। Now अब हमें क्लिक करना है न्यू रूल पे एंड जो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मूला हमें एंटर करना है। Now सेलेक्ट करना है फॉर्मेटिंग स्टाइल को और ओके बटन को क्लिक करना है। रिजल्ट क्या है, एक्सेल हाईलाइट्स ऑल द यूएस ऑर्डर्स। यूएस के जितने भी ऑर्डर्स हैं उसे जो है क्या करेगा, एक्सेल हाईलाइट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यूएस के 3 ऑर्डर्स यहाँ पे हैं। नाउ देयर इज अनदर नोट, वी कैन ऑल्सो यूज दिस कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है उसे हम यूज कर सकते हैं। क्या करना है, हमें स्टेप 3 पे जाना है ऑफ टॉप बॉटम रूल्स टू हाईलाइट द टॉप एंड आइटम्स, द टॉप एंड परसेंटेज, the bottom end items, the bottom end percentage और cells that are below average। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, इन ऑप्शंस को हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। Now let's learn about conditional formatting in formulas। फॉर्मूला में हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं।
टू टेक आवर एक्सेल स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप चाहते हैं आपके एक्सेल के जो स्किल्स हैं उसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाए, एंड यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और हम क्या करें फॉर्मूला को यूज करें ये जानने के लिए कि कौन से सेल को जो है फॉर्मेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज फॉर्मूलाज, हम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। Formulas that apply conditional formatting must evaluate either true or false. So वो फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, ये जो है इवेल्युएट करते हैं कि जो दी गई चीज है वो ट्रू या है या फॉल्स। सो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो दी गई स्टेप्स है इन्हें फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 कहता है हमें डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है A1 से E5 तक। सो A1 से E5 तक के जितने भी डेटा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें जाना है होम टैब में, जहाँ पे हमें जाके स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा, वहां जाना है और वहां जाके हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज करना है। सो आफ्टर चूजिंग इट वी हैव टू क्लिक न्यू रूल। न्यू रूल पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रूल। यहाँ पे जाके जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वी हैव टू चूज use a formula to determine which cells to format. So ये वाला जो ऑप्शन है इसे चूज करना है, और इसको चूज करने के बाद वी हैव टू एंटर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे एंटर करना है। फिर हमें सेलेक्ट करना है फॉर्मेटिंग स्टाइल को और ओके बटन को क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है ओके बटन को क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं दिस इज योर रिजल्ट। सो एक्सेल हाईलाइट्स ऑल ऑड नंबर्स अकॉर्डिंगली। एक्सेल क्या करेगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट हियर इज एन एक्सप्लेनेशन गिवन, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फॉर द अपर लेफ्ट सेल। सो हमें क्या करना है, हमेशा जो फॉर्मूला है उसे लिखना है अपर लेफ्ट सेल के लिए इन द सिलेक्टेड रेंज, जो भी सिलेक्टेड रेंज है उसमें। एक्सेल विल ऑटोमेटिकली कॉपी द फॉर्मूला। एक्सेल क्या करेगा, जो फॉर्मूला है उसे ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा टू द अदर सेल्स, दूसरे सेल्स में। Therefore सेल A2 contains the formula। यहाँ पे जो A2 सेल है वो उसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा, एंड ये है हमारा फॉर्मूला। एंड सेल A3 contains the formula। अब A3 में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, और सिमिलरली आपको अलग अलग सेल्स में अलग अलग फॉर्मूलाज दिखाई देंगे। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट। So sorting in Excel is arranging the data according to our requirements. It can be done alphabetically or numerically, ascending या फिर descending order में। We can sort our Excel data on one column or multiple columns। हम डेटा को एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स में भी सॉर्ट कर सकते हैं। We can sort in ascending और descending order। हम ascending या फिर descending order में भी सॉर्ट कर सकते हैं। Filters can be used to narrow down the data in the worksheet। फिल्टर को यूज करते हैं डेटा को नैरो डाउन करने के लिए वर्कशीट में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज अस टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है हमें हेल्प करता है स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लगाने में सेल्स में दैट मैचेस अ क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया को मैच कर रहा हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज टू परफॉर्म कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज किया जाता है कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करने के लिए, टू हाईलाइट, एम्फसाइज और डिफरेंट द वैल्यूज। तो इन सारी चीजों में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू लेट्स गो, व्हिच इज योर बुक एक्सरसाइज। सो A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one is background and foreground colors are controlled with the help of shading object. Next, second one, conditional formatting allows us to apply specific formattings to cells that meet certain criteria. Third one, descending sorting means is arranging the data from the largest to the smallest. Fourth one, sorting means is arranging data according to our own requirements. Fifth, filter is used to narrow down the data in the worksheet. And the sixth one is ascending sorting is used to arrange data from smallest to largest. Now let's move on to B exercise, which is write true or false.
So here the first one is sorting can be done both alphabetically and numerically. Yes, this is true. Second one, we can sort data in ascending or descending order. Yes, this is also correct. True. Third one, conditional formatting in Excel enables us to highlight cells. This one is also true. Now let's move on to the next question, which is question number 4. Filters can be used to narrow down the data in the worksheet. Yes, true. Fifth one, we can sort our Excel data on one column or multiple columns. True again. Sixth one, filters narrow down the data in the worksheet. Yes, true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is the rearrangement of data in ascending or descending orders is called filtering, formatting, sorting or custom filter. Correct answer is sorting. Now the second one is the conditional formatting option is present under this tab of Microsoft Excel. Insert tab, Styles tab, Page Layout tab or Home tab. Correct answer is Home tab. Third, what happens to the header row when we click on the filter command? First, drop down arrows will appear for the header cells in each column. Second, a filter dialog box will open with options. Third, you will see a checklist of all the column titles. And the fourth one is none of the above. So here the correct answer is first, drop down arrows will appear for the header cell in each column. Fourth one, under which tab and group of commands we find the filter tool. Page layout, sheet options, file, filter, data, sort and filter, file, sort and filter. So here the correct answer is data, sort and filter. Now the fifth one is when data is arranged in ascending or descending order for only one column and it is called. So the options are multiple column sorting, one bar sorting, single column sorting or all of the above. So here the correct answer is single column sorting. Now the sixth one is it is used to perform color based sorting, formatting, filtering, none of these. So here the correct answer is formatting. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.